I think welcome on Europedia. And is ISRO going to recruit engineers and scientists in 2025 through CBT written exam? Answer is yes. Most probably it is going to recruit, and I will tell you through the previous year's data. Typically, ISRO requires 200, 300 plus scientists or engineers every 2 years. If you see for the past 10 years now, it's 2025. If you take the data from 2015, that is the recruitment ISRO is doing. Now, recently, 29th of April, ISRO released recruitment information through GATE 2024-2025. GATE के साथ recruitment was started in 2022. But the recruitment done through GATE is only for limited number of seats by ISRO, not more number of seats. Typically, recruitment through GATE is done when the number of seats are less than 100. When the number of seats are more than 200 or 300, then ISRO conducts its own test, which is a written test or CBT. Let me show you something, and then you will be getting better idea. So let me share with you, friends, my screen here, and I'm very sure now it is visible to you. This is past 10 years data of ISRO. So if you see 2015, written exam used to be conducted. That was not computer based, but written exam. Age limit used to be 35. Now, number of seats, if you see 2015, 2016, 375, 100, 109, and then 17 mein number was less, 18 mein number was there, 19 mein number was there. So if you take average out, you will find every 2 years, number of seats required in ISRO are more than 300. Now, what happened was 2021 and 2020, because of the COVID years, recruitment was not done because it was felt that maybe interview will not be conducted, interview cannot be conducted. So exam was not conducted. Coming to 2022, the exam was conducted, but exam was not conducted, but through GATE, recruitment was done. Now, as I told you, through GATE, recruitment is not for many number of candidates, 68, 63. Only twice ISRO has taken through GATE in 2022 and 2024. And I'm talking here about centralized recruitment, जिसको ISRO centralized recruitment board recruit करता है. There are different centers recruitment keep on going for engineers. हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम centralized recruitment की बात कर रहे हैं, जिसके लिए पूरे all over India में एग्जाम होता है और centralized recruitment किया जाता है. अब इसरो ने गेट के थ्रू ओनली 2 ही बार रिक्रूट किया है सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट में, दैट इज इन ईयर 2022, जो कोविड के बाहर आप निकल रहे थे, अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ, एंड ईयर 2025 जो अब आया है. 2025 में ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आर एक्सपेक्टेड, मोर देन 300. लेकिन जब तक वो वैकेंसीज पूरी तरह से आप नहीं करते हैं और जब तक आप वो टेस्ट नहीं करते हैं, तो इसरो को काम चलाने के लिए ऑब्वियसली कुछ नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड, जो रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू हुआ है. And also, ISRO does not want to come out of the gate, maybe one reason or the other, because gate also exam is conducted by IITs, and to maintain the legacy, maybe gate exam के through recruitment होता है, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स का नहीं होता. 300 प्लस नंबर ऑफ सीट्स का जब भी रिक्रूटमेंट हुआ है, देखो 2019 में हुआ है, 2016 में हुआ है, 2023 में हुआ है, तो 2025 में होगा, 300 प्लस का होगा और रिटन एग्जाम के थ्रू होगा. 2024 में क्या हुआ, देयर वाज नो टेस्ट, बट 2024 में एक टेंडर निकल के आया जिसमें ये बताया गया कि अब रिक्रूटमेंट जो करेगा इसरो, वो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू करेगा, और उसके लिए टेंडर निकाला गया और एक जेन्युइन प्लेयर को हायर किया गया सीबीटी करवाने के लिए. तो फ्रेंड्स, पहला सीबीटी जो हुआ था वो कोई टेंडरिंग प्रोसेस नहीं था, वो आपका कंडक्ट करवाया गया था 2023 में. उससे जो लर्निंग हुई, अब उसके लिए फिर ट्रेंडिंग निकाला गया, और नाउ ISRO is almost going to conduct the written exam, maybe CBT, very soon, that is within 6 months. और अगर आप एक पैटर्न देखोगे, मैं एक और पैटर्न आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स. यहाँ पे आप एक पैटर्न देखो 2022 और 23 में. 2022 नवंबर में गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट हुआ और उसके 6 मंथ के बाद 300 प्लस का रिक्रूटमेंट हुआ सीबीटी के थ्रू. वैसा ही पैटर्न अब दोबारा आ रहा है. अप्रैल में 60 सीट्स गेट के थ्रू आई, 6 महीने और जोड़ लो और एक बड़ी रिक्रूटमेंट आएगी 300 प्लस साइंटिस्ट के लिए, जो सीबीटी के थ्रू होगी. ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स. और आप जो रिटन एग्जाम है उसका ऑलरेडी पैटर्न जानते हैं. ये 2022 और 23 का जो मैंने कंपैरिजन है ये आपको करके बताया. तो जब 22 में रिक्रूटमेंट हुई थी गेट के थ्रू, तो ये लिखा गया था कि गेट स्कोर एंड रिमेनिंग वैकेंसीज विल बी थ्रू रिटन एग्जाम. ये 2022 का नोटिफिकेशन है, आप ध्यान से उसको देख सकते हैं, वो इसरो के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है. तो 2022 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें लिखा था कि इसरो ने अब तो गेट के थ्रू लिया है, लेकिन रिमेनिंग वैकेंसीज रिटन एग्जाम के थ्रू होंगी.
2023 में जब आपका एग्जाम हुआ तो 300 वैकेंसीज के लिए वो रिटन एग्जाम के थ्रू करवाया गया और इन सेंटर्स में रिटन एग्जाम हुआ। सेम चीज दोबारा रिपीट हो रही है। 22 में पहले गेट के थ्रू हुआ और बोला गया रिमेनिंग वैकेंसी रिटन के थ्रू होगा, जो जो 2023 में हुआ। सिमिलरली अब जो होगा 6 महीने के बाद रिमेनिंग वैकेंसीज के लिए, इस बार को नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ोगे उसमें भी ये लिखा है कि रिमेनिंग वैकेंसीज का रिटन टेस्ट के थ्रू होगा, तो 6 महीने के अंदर रिटन एग्जाम आ सकता है। आई बिलीव दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर वेल फॉर इसरो। जो इसरो जाना चाहते हैं 300 प्लस सीट्स आएंगी फ्रेंड्स। मैक्सिमम सीट्स मैकेनिकल की होंगी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स की होंगी, और मैकेनिकल की 150 प्लस सीट्स होंगी। वैसा ही पैटर्न होगा जैसे प्रीवियस ईयर्स में आया था, 2023 में हुआ था। अब तैयारी अपना ऑन रखें, अगर 6 महीने बाद एग्जाम होगा तो आपको तैयारी ऑन रखनी है, 28 साल तक आप इसमें जा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर विद योर पीडिया। थैंक यू।